Praise the Lord and good morning to all of you. जय मसीह की सुप्रभात आप सभी को। I welcome you all in the name of Yeshua the Messiah to this Sunday online service. मैं आप सभी का इस संडे ऑनलाइन सर्विस में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। Wherever you are, I pray that God will bless you this morning. आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ आप आशीषित होंगे। Let's spend some time in giving thanks to the Lord. आइए हम कुछ समय बिताएं प्रभु को धन्यवाद करने में। You can lift your hands, open your mouth and say thank you Jesus. अपने हाथों को उठाएं, मुंह को खोल के कहें प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। Thank you Jesus for your goodness. प्रभु यीशु मसीह आपकी भलाई के लिए धन्यवाद। Thank you Jesus for your mercies, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद, which are new every morning, O Lord. जो प्रति भोर हमारे जीवन में नई होती जाती We है। adore you and we worship you, Lord. हाँ प्रभु जी, हम आप ही की आराधना करते हैं प्रभु जी, आप ही की स्तुति करते हैं प्रभु। I will read Psalm 100 which talks about praising God. मैं आपके सामने भजन संहिता 100 पढ़ लूंगा जो प्रभु की आराधना करने का है। It's a poetic song for thanksgiving. और ये एक पोइटिक एक भजन है जो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए है। And I will read it from the Passion Translation. मैं इसे पैशन अनुवाद में आपके सामने पढ़ लूंगा। It says, verse 1, lift up a great shout of joy to the Lord. Go ahead and do it, everyone, everywhere. पहला वचन कहता है भजन संहिता 100 का, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। As you serve him, be glad and worship him. Sing your way into his presence with joy. आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। Verse 3 says, and realize what this really means. We have the privilege of worshiping the Lord our God, for he is our creator and we belong to him. We are the people of his pleasure. तीसरा वचन कहता है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। Verse 4 says, you can pass through his open gates with the password of praise. Come right into his presence with thanksgiving. Come, bring your thank offering to him and affectionately bless his beautiful name. चौथा वचन कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। Verse 5 says, for the Lord is always good and ready to receive you. He is so loving that it will amaze you, so kind that it will astound you, and he is famous for his faithfulness toward all. Everyone knows our God can be trusted, for he keeps his promises to every generation. पांचवा वचन कहता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Let's lift our hands and let's close our eyes and let's bow our heads and let's spend some time in prayer. आइए अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you that you are an awesome God, O Lord. परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। Thank you for keeping us alive on this land so that we can praise you, Lord, as long as we have breath in our lives, O Lord. हाँ प्रभु जी, हमको जिंदों के मध्य में रखने के लिए प्रभु जी, जमीन में जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना करने पाएं। Thank you for giving us the breath of life. Thank you for giving us everlasting life. Thank you for your grace and mercies, O Lord Jesus. हाँ प्रभु जी, जीवन की श्वास देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी, आनंद जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिसके द्वारा आपकी स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। As Apostle John said, you increase and we decrease. Lord, I pray this morning, let your name be lifted high through everyone's lives, O Lord, this morning, O Lord. हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार से प्रेरित यूहन्ना ने कहा कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, हाँ प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, हमारे जीवनों के द्वारा आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ती जाए प्रभु। We commit this day, we commit this service, we commit all the people who are attending wherever they are. I pray that you will touch each one of them and you will bless them personally, O Lord. हाँ प्रभु जी, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी इसमें शामिल हैं प्रभु जी, जो इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक जन पर आपकी आशीष बोलते हैं, आप हर एक जन को छू लें प्रभु। In Yeshua's name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, Amen. आमीन।
Let's spend some time in worshiping the Lord, आइए कुछ समय प्रभु की आराधना करने में बिताएंगे and our children will lead in worship, और हमारे बच्चे आराधना में अगुवाई and करेंगे, then we will come back फिर हम वापस to आएंगे partake in Lord's table. ताकि हम प्रभु भोज में शामिल हों। Thank you. धन्यवाद। Praise the Lord, Church. We welcome you to our Sunday service. Let's all stand and worship the Lord, for He is good. His love endures forever. परमेश्वर का वचन मत्ती 11 उसकी 29 में ऐसा कहता है थके और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख, चैन और शांति दूंगा। मेरा जुआ लो और उसे अपने ऊपर संभालो, फिर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं सरल हूँ और मेरा मन कोमल है। तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में शांति है। आपका नाम हमें सुकून और शांति देता है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा और स्तुति करते हैं। आपका नाम यहोवा शालोम है, इसलिए हम आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं यीशु, क्योंकि हमें आपसे ही शांति मिलती है। You are hope, Lord Jesus. You are peace, Lord Jesus. And so we lift up your name. We give you all glory, honor, and praise, Jesus. You are worthy and you deserve all glory, Jesus. आइए हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे, ले चल मुझे, और परमेश्वर की आराधना करेंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ। प्रेमी मन से हो मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ।
तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। हो जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। सब मिलके जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। Isaiah 41:10 says, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." We bless you, Lord Jesus, once again this morning, Lord Jesus. We are grateful for every beautiful thing that you've given to us, Lord Jesus. We bless your name for the privilege, Lord Jesus, for the opportunity to sit together each morning, Lord Jesus. If not physically, Lord Jesus, but spiritually, you have held us together, Lord Jesus. During this difficult time, Lord Jesus, you have asked us, Lord Jesus, to be still, Lord Jesus, and know that you are there to take care of us, Lord Jesus. That you are there, Lord Jesus, looking out for us, Lord Jesus, working for us, Lord Jesus. Your grace keeps on showering upon us. We bless you for that, Lord Jesus. We are not fearful today, Lord Jesus. No matter what the conditions, Lord, Lord Jesus. We are not fearful, Lord Jesus, but we are strong in faith, Lord Jesus. We are happy, Lord Jesus. We are grateful, Lord Jesus. We are joyful today, this morning, Lord Jesus, to be able to sing praises to your glorious name, Heavenly Father, Lord Jesus. Listen to your word, Lord Jesus. Grow closer to you, Lord Jesus. Thank you for keeping us near you, Lord Jesus. Thank you for your forgiveness, for your mercy, Lord Jesus. On our entire church family, Lord Jesus, that you have not let us be part ways, Lord Jesus, but you have kept us together, Heavenly Father. We bless you for that, Lord Jesus. We thank you for taking all our fear and shame, Lord Jesus. We thank you for relieving us from all our iniquities, our inhibitions, Lord Jesus, our sins, Lord Jesus, all our fear, Lord Jesus. Everything you have taken away from us, Lord Jesus. You have asked us to cast our burdens unto you, Lord Jesus, and we bless you. We are grateful for that, Lord Jesus, for the relief, Lord Jesus, that your love provides, Lord Jesus, for the relief that your grace gives us, Lord Jesus. You are a gracious God, Lord Jesus. Lord Jesus, you have not let your anger be unleashed upon us, Lord Jesus, because you love us, Lord Jesus. We believe we are your children, Lord Jesus. You are our Father, Heavenly Father. You take care of us no matter what, Lord Jesus. We are not fearful this morning. We sing this song in praising, Lord Jesus, lifting your glorious name up high, Lord Jesus. As we sing this song, we ask you, Lord Jesus, to shower your strength, Lord Jesus, your courage, Lord Jesus, your mercy, your loving kindness to fall upon us this morning, Lord Jesus. We bless you and we lift your name again, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus.
By your glory and grace, you broke every chain. I am set free. Condemnation no more, sin lost all control. I am set free. By your glory and grace, you broke every chain. I am set free. Let's sing together. Your name, Jesus. Your name, Jesus. Jesus, your name. Your name brings healing to me. Let's sing together. Your name. Your name, Jesus. Your name, Jesus. Jesus, your name. Your name brings healing to me. Fear doesn't live here no more. Fear doesn't live here no more. When your name was spoken, your name brought healing to me. Shame doesn't live here no more. Shame doesn't live here no more. When your name was spoken, your love brought healing to me. Condemnation no more. Sin lost all control. I am set free. By your glory and grace, you broke every chain. I am set free. Condemnation no more. Sin lost all control. I am set free. By your glory and grace, you broke every chain. I am set free. Your name, Jesus. Your name, Jesus. Jesus, your name. Your name brings healing to me. Your name, Jesus. Your name, Jesus. Jesus, your name. Your name brings healing to me. Let's declare together. I am free. I am free. These chains have no hold on me. I've been healed. Hallelujah. I am free. I am free. I am free. These chains have no hold on me. I've been healed. Hallelujah. Your name, Jesus. Your name, Jesus. Jesus, your name. Your name brings healing to me. Let's lift our hands and sing your name. Your name, Jesus. Your name, Jesus. Jesus, your name. Your name brings healing to me. Jesus, your name. Your name brings healing to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रशंसा करते हैं। Thank you, Jesus, that you are here in our midst, O Lord. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभु। You said wherever two or more people are gathered, you are present in their midst, O Lord. आप प्रभु जी आपने वायदा किया प्रभु जी कि जहाँ दो या दो से अधिक आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, आप वहाँ पे मौजूद होते हैं। Thank you for accepting our praises, O Lord, and worship this morning. हाँ प्रभु जी, हमारी आराधना स्तुति को ग्रहण करने के लिए आपका धन्यवाद। Even as our hearts are prepared, O Lord,
Help us that we will partake in Lord's table, O Lord. हाँ प्रभु, जैसे हृदय हमारे अब तैयार है प्रभु जी, हमें प्रभु जी प्रभु भोज के लिए तैयार करें प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. आमीन। So this is the time to partake in Lord's table. अभी समय होगा कि हम प्रभु भोज में शामिल हों। Remember, Lord's table is only for those who are water baptized. कृपया याद रखें, ये प्रभु भोज केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है। There should be no leftover and it should not be given to small children. इसका कोई भी भाग आप बाद के लिए बचा के ना रखें और इसे बच्चों को ना दें। I have taken the bread मैंने रोटी ले ली है and I will read from 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28 and I will read in NKJV version. और मैं आपके सामने पढ़ लूंगा पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से 28वें वचन तक NKJV अनुवाद में। It says like this, for I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 वचन से 28 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 27-28 वचन ऐसा कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we come to your throne of grace this morning. प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आज की सुबह आते हैं। We humble ourselves, we pray and seek your face, and we turn from our own wicked ways, that you will forgive our trespasses, you will hear our prayers, O Lord, and you will heal our lives, O Lord. हाँ प्रभु जी, हम दीन होते हैं प्रभु जी, अपने बुरे मार्गों से फिरते हैं प्रभु जी, आपकी दुहाई देते हैं प्रभु जी, और आप ही के चेहरे को ढूंढते हैं प्रभु जी, ताकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु जी हमारे पाप अपराधों को क्षमा करें और हमारे जमीनों को चंगा कर दें प्रभु। I confessed my own personal sins, O Lord, and the sins of my family and my household and the church members and the church leadership and the church household, O Lord, and all the churches, all the pastors, all the leaders, O Lord. I confess their sins and trespasses and confess that we have sinned against you only, Lord. हाँ प्रभु जी, सबसे पहले मैं अपने पापों का अपराधों का आपके सामने अंगीकार कर लेता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने परिवार का प्रभु जी, अपने घराने का प्रभु जी, आपकी कलीसिया के लोगों का प्रभु जी, हर एक अगुओं के लिए प्रभु जी, हर एक सदस्यों, हर एक कलीसिया के हर एक घरानों के लिए प्रभु जी, उनके पाप अपराधों का आपके सामने अंगीकार कर लेता हूँ प्रभु जी। हर एक प्रभु जी जो विभिन्न कलीसियाओं के जो अगुए हैं प्रभु जी, उनके प्रभु जी हर एक उन सदस्यों के लिए प्रभु जी, हर एक विश्वासियों के पाप अपराधों का आपके सामने अंगीकार कर लेता हूँ I प्रभु। confess the sins, O Lord, of our nation leadership, O Lord, and the people of our nation, O Lord, and the rulers of all the nations and the people of all the nations, and also the nation of Israel and all the Jewish people, O Lord. I confess their sins and trespasses, O Lord. हाँ प्रभु जी, अपने भारत देश के लोगों के पाप अपराधों का आपके सामने अंगीकार करते हैं प्रभु जी, देश के अगुओं के लिए प्रभु जी, देश के हर एक जनों के लिए प्रभु जी, हर एक के पाप अपराधों का आपके सामने हम मान लेते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक विश्व के विभिन्न जो देश हैं प्रभु जी, उनके लोगों के प्रभु जी पाप अपराधों को आपके सामने मान लेते हैं प्रभु जी। इजराइल देश के प्रभु जी, हर एक यहूदियों के पाप अपराधों को आपके सामने हम मान लेते हैं प्रभु। Lord, wash us with your precious blood and forgive us our trespasses. हाँ प्रभु जी, अपने बेशकीमती लहू समेत धो के शुद्ध पवित्र करते हैं प्रभु जी, हमारे पापों को आप क्षमा करते हैं As प्रभु। we repent this morning, O Lord. इस प्रकार से आज हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। Thank you, Jesus, for your forgiveness. प्रभु यीशु मसीह, क्षमा करने के लिए धन्यवाद। And even as you forgive us, O Lord, give us a kind heart
and a generous heart that we will forgive others who are unkind to us, O Lord. हाँ प्रभु जी, क्षमा करने के लिए धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने हमको क्षमा किया प्रभु जी, हमें ऐसा मन और हृदय प्रदान करें प्रभु जी, दया और कृपा से प्रभु जी उदारता से भरा हृदय प्रदान करें, ताकि हम दूसरों को भी जो हमारे विरोध में काम करते हैं उनको भी हम क्षमा करने पाए Forgive प्रभु। us, O Lord, those who speak ill of us, those who slander us, gossip about us, and work against us, O Lord. Help us to show your love to them, O Lord. हाँ प्रभु जी, जो हमारे विरोध में बातें करते हैं प्रभु जी, जो हमारे पीठ पीछे गपशप करते हैं प्रभु जी, हमारे पीठ पीछे बुराई की बातें करते हैं, जो हमारे विरोध में काम करते हैं प्रभु जी, हमें ऐसा हृदय दे कि हम उनको भी क्षमा करने पाए प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We also remember what you did for us. आप उस बात को स्मरण करते जो आपने हमारे लिए कर दिया प्रभु You जी। shed your blood for us. आपने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, You took stripes for us. आपने हमारे लिए कोड़े खाए, You died on the cross for us. आप हमारे लिए क्रूस पर मर गए You प्रभु। took our sin and shame, O Lord. आपने हमारे पाप को, हमारी शर्मिंदगी को ले लिया प्रभु। Guilt and condemnation and curses, O Lord. हाँ प्रभु जी, आत्मग्लानि को प्रभु जी, श्रापों को प्रभु जी, दोष को अपने ऊपर ले लिया प्रभु। All our pain and sickness and diseases, O Lord. हमारे हर एक पीड़ाओं को प्रभु जी, हमारे हर एक रोगों को, हर एक बीमारियों को ले लिया प्रभु। In exchange, you gave us your righteous life, abundant life, and forever eternal life. We thank you and we praise you for that, O Lord. हम उसके बदले में आपने हमें अपना धार्मिकता वाला जीवन दे दिया प्रभु जी, बहुत आयत का जीवन दे दिया प्रभु जी, अनंत काल का जीवन दे दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। We commit this day into your hand. आज के दिन को आप ही के हाथों में सौंपते We हैं। pray that you bless this bread and cup to our bodies, O Lord. आप जी, आपसे प्रार्थना करते हैं इस रोटी और इस प्याले को हमारे शरीरों के लिए आशीषित कर दीजिए Open प्रभु। the eyes of our understanding, O Lord. हमारी समझ की आंखों को खोल दीजिए Give प्रभु। us good health, O Lord Jesus. हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें As प्रभु। we break this bread, O Lord, we pray people who are going through suffering, O Lord, and pain. I pray that they will be healed and delivered this morning, O Lord. हाँ प्रभु, जब इस रोटी को हम तोड़ते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग पीड़ाओं से, दुखों, तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, आप उनको छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे प्रभु। Those who are going through depression, O Lord, and mental tension, O Lord, you will break the hold of depression over them, O Lord. हाँ प्रभु, जो लोग डिप्रेशन से प्रभु जी होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, जो मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, हर एक अवसाद से जो गुजर रहे हैं प्रभु जी, आप उनको छुटकारा देंगे Those who प्रभु। lost their jobs, you will provide them new jobs. Those who have lost their businesses, you will give them new opportunities. Those who have debts over their life, oh Lord, I pray that you will cancel those debts over them in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु, जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं प्रभु जी, आपने उनके लिए नई नौकरियां देंगे प्रभु जी। जिनके नुकसान हुआ है प्रभु जी व्यवसाय में प्रभु जी, आप उनके लिए नए अवसर प्रदान करेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो लोग कर्जों में हैं प्रभु जी, आपसे हम प्रार्थना करते हैं आप हर एक कर्जों को निरस्त कर देंगे प्रभु। In Yeshua's name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, Amen. आमीन। Please take the bread, you break it and take it now, even as I am taking. Remember, this bread symbolizes the body of Christ. कृपया इस रोटी को लें, इसे तोड़ें और ग्रहण करें जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। और इस बात को स्मरण रखें कि जो रोटी है प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाती है। And then you take the blood of Jesus and partake in this. फिर आप यीशु का लहू लेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Lord Jesus, we thank you for this provision. प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं इस प्रावधान के लिए। We are blessed and honored, O Lord, आप प्रभु, हम आशीषित हैं प्रभु, जो हमारे लिए आदर की बात है to प्रभु, partake in your body and in your blood, O Lord. कि आपकी देह में और आपके लहू में हम शामिल हो सकते हैं। Even as our hearts are prepared now, O Lord, you will speak to each one of us personally, O Lord. Renew our minds, renew our hearts, O Lord, so that we will worship you, adore you, and walk in reverence and awe for you, O Lord. आप प्रभु, जब हमारे हृदय अब तैयार हैं प्रभु जी, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप में से प्रत्येक जन से आप बातचीत करें प्रभु जी, और मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं वैसा अपना जीवन जीने पाएं, जिससे आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु। In Yeshua's name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, Amen. आमीन। Today's topic is godly fear. और आज का विषय है परमेश्वर का भय। So if you want to know what exactly it means to fear God, यदि आप जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है परमेश्वर का भय मानना, the broad command to fear the Lord involves understanding several things about a believer's relationship with God. और यहाँ पे इसके लिए आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि बहुत सारी बातें एक विश्वासी का जैसा संबंध परमेश्वर पिता के साथ होना चाहिए। First of all, we must remember that our God is a loving,
merciful and forgiving God. हम सबको सबसे पहले इस बात को स्मरण रखना होगा कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। But He is also holy, just and righteous God. लेकिन साथ ही साथ वो पवित्र है, वो न्यायी है, वो धर्मी परमेश्वर है। Knowing God and understanding His character means accepting the fact that His justice and holiness और जब परमेश्वर पिता को जानने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर पिता का जो न्याय है और कितना वो पवित्र है इसको जानना, that purity, perfection, completeness of character, and separation from evil cause Him to judge sin. और इसी कारण परमेश्वर पिता में जो शुद्धता पाई जाती है, जो वो पवित्रता में रहते हैं और जो धार्मिकता में जब वो रहते हैं, तो इसी कारण जो दुष्टता की जो बातें होती है, जो पाप होता है, वो उसका फिर उसको दंड देते हैं। Secondly, we also need to understand that fearing the Lord means to be in awe of His holiness. और दूसरी बात यह है, परमेश्वर पिता का भय मानने का मतलब है कि परमेश्वर पिता के पवित्रता के सामने उसके विभव को देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। And it also means to give Him complete reverence and to honor Him as the God of great glory, majesty, purity and power. और इसका मतलब ये भी होता है कि हम परमेश्वर पिता को पूरा सम्मान और आदर प्रदान करें, क्योंकि जो उसका विभव है, जो उसका पराक्रम है, जितना प्रतापी वो परमेश्वर है, उसके अनुसार। For example, उदाहरण के तौर पर when God revealed Himself to the Israelites at Mount Sinai, जब परमेश्वर पिता ने अपने आप को उस सीनै पर्वत पर प्रकट किया, He revealed Himself through thunder and lightning, with a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast. और जब परमेश्वर पिता वहाँ पे प्रकट हुए तो वहाँ पे बिजलियाँ चमकी, आकाश गरजा, वहाँ पे एक बहुत बड़े बादल ने वहाँ पे छा लिया और बहुत बड़े आवाज के साथ परमेश्वर पिता ने वहाँ पे अपने आप को प्रकट किया Loud trumpet sound. और वहाँ पे बहुत तेज तुरही का शब्द सुनाई दिया। And the Bible says in Exodus 19, it says, I believe, that they all trembled with fear, and that was actually showing awe and reverence to God. और फिर यहाँ पे इस बात का वर्णन किया गया बाइबल में, जो कि निर्गमन 19वें अध्याय में लिखा गया है कि वहाँ पे जितने जो लोग थे वो थरथरा कर कांपने लगे परमेश्वर पिता की उपस्थिति के सामने। You know, the writer of Psalm reflects on God as creator, and he says like this. और जो भजनकार जो है, जो भजन संहिता जिन्होंने लिखा है, उन्होंने परमेश्वर पिता को ऐसा प्रदर्शित किया है। I believe it is in Psalm 33. और ये भजन संहिता 33 में पाया जाता है। It says like this, let all the earth fear the Lord. It says, let all the earth fear the Lord. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हे सारी पृथ्वी तू परमेश्वर का भय मान। It says, let all the people of the world revere Him. और जितने जो पृथ्वी भर के लोग हैं सब उसका आदर करें। For He spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. क्योंकि उसने कहा और ऐसा भी हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो सारी बातें स्थापित हो गईं। You know, true fear of the Lord causes believers to place their faith and trust in God and God alone for salvation. इसी कारण जो सच्चा परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये है कि एक जो सच्चा विश्वासी है, जो भय मानने वाला व्यक्ति है, वो अपना सारा भरोसा, सारा विश्वास परमेश्वर पिता पर ही करता है अपने उद्धार के लिए। You know, a psalm writer in Psalm 115, he encourages all who fear the Lord to trust in the Lord, because the Lord is their help and shield. इसी कारण यहाँ पे भजनकार कहता है, हर एक जन जो परमेश्वर पिता का भय मानते हैं, जो उसके वे डरवैये हैं, वो परमेश्वर पिता पर ही वो अपना भरोसा लगा के रखें, क्योंकि वही उनकी सुरक्षा और ढाल है। In other words, fearing God produces confidence, hope, and trust in Him, which are necessary when we are looking to God for mercy and forgiveness. और इसी कारण जब परमेश्वर पिता का भय मानने का मतलब ये है कि जो लोग उसका भय मानते हैं वो परमेश्वर पिता की ही दया और करुणा की आस लगाकर उसके पास रहते हैं। You know, in the scriptures, in the Bible, in Romans chapter 3, if you read Romans chapter 3,
It's a classic chapter on sin. And it says like this, the chief sin. What is the chief sin? It says like this in Romans chapter 3, verse 18. And I will read in KJV version. It says, there is no fear of God before their eyes. That's the chief sin. No fear of God in their eyes. और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा जो कि जो सबसे बड़े पाप के विषय में बताता है। रोमियो उसके 3 अध्याय में ये बात पाई जाती है। यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि जो सबसे बड़ा पाप जो मनुष्य करता है वो यहाँ पे ऐसा लिखा है रोमियो 3:18 में, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। So what is godly fear? ये क्या होता है परमेश्वर का भय? Godly fear is the proper sense of awe, respect, and wonder that is inspired and demanded by an encounter with or meditation upon the character of our living God. इसी कारण परमेश्वर पिता का भय का मतलब होता है कि हम परमेश्वर पिता के जो उसका विभव है हम उसी में आश्चर्यचकित होकर उसी के भय में उसका परमेश्वर पिता का जो महात्म्य है उसको देखकर हम परमेश्वर पिता के ही पास बड़े आदर और सम्मान के साथ उसके पास रहें। Godly fear also says that we have to have reverence for Him, and reverence should be exclusively reserved for our God, our Maker, Lord Jesus Christ. और परमेश्वर पिता का भय का मतलब है कि हम परमेश्वर पिता का आदर करें और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता को ही हम वो सबसे बड़ा आदर अपने जीवनों के द्वारा दें। You know, when we have reverence for God, we will also have right relationship among the people of God. इसी कारण इस बात को याद रखें, जब आप परमेश्वर पिता का जब आप आदर करते हैं तभी आप फिर सही संबंध में परमेश्वर पिता के साथ आप रहने पाते हैं। So as followers of Yeshua the Messiah, you and I must have fear of God or godly fear. इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के नाते हम सभी के हमारे जीवनों में परमेश्वर पिता का भय होना चाहिए। Ecclesiastes chapter 12 and verse 13 says like this, समुपदेशक 12वां अध्याय उसका 13 वचन ऐसा कहता है, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. समुपदेशक 12 उसका 13 वचन ऐसा कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। There's another verse, 1 Peter chapter 1 verse 17 in KJV version. It says like this, एक और वचन है पहला पत्रस पहला अध्याय 17वां वचन NKJV अनुवाद में, and if ye call on the Father, who without respect of person judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. पहला पत्रस 1 का 17 वचन, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। So our God is our maker. He is our creator, and we must have awe and reverence in our lives towards Him. क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता ही हमारा रचने वाला, हमारी सृष्टि करने वाला है, इसलिए हमेशा परमेश्वर पिता के साथ आदर के साथ उसका भय माने। Remember, the Lord beholds all the evil and the good on this earth, and He hath set His eyes upon all their ways, all the ways of human being. Lord knows very clearly both the good and the evil. क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जिसके हाथों में चाहे इस पृथ्वी की अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें हो, हर एक बातें परमेश्वर पिता के सामने ही है। वो स्पष्ट तौर से हर एक बातों को वो देखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। So remember, Lord Jesus will either be our Savior or He will be our judge one day. इसका इस बात को याद रखें, जो प्रभु यीशु हैं वो या तो आपके उद्धार करता होंगे या फिर आपके ऊपर दंड को सुनाने वाले न्यायी होंगे। Also remember, there is no duty or service performed by us that can by any means be accepted by God
if it be not seasoned with godly fear. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहे कोई भी काम आप परमेश्वर पिता के लिए आप कर लें, और जब तक वो ग्रहण योग्य परमेश्वर पिता को नहीं होगी, जब तक आप उसको परमेश्वर पिता के भय के साथ उस कार्य को ना करें। Hebrews chapter 12, verse 28 in KJV version says like this. इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 28वां वचन केजेवी अनुवाद में ऐसा कहता है, Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. इब्रानियों 12 उसका 28 वचन, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। Here, God is the object of our fear as revealed in His Word. और यहाँ पे हमारा परमेश्वर ही है, वो विषय है जिसका हम उसके भय माने, जहाँ पे इसके वचन में जो प्रदर्शित किया गया है। Fear is respect of God Himself. और जो भय है वो परमेश्वर पिता का आदर करना ही है। Who knows the power of His wrath? कौन परमेश्वर पिता के क्रोध की सामर्थ को जानता है? Let's read Nahum chapter 1, verse 5 and 6, and we are going to read in KJV version. सो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे जो कि नहूम पहला अध्याय 5 और 6 वचन में पाया जाता है केजेवी अनुवाद It में। says, The mountains quake at Him, the hills melt, and the earth is burned at His presence. Yea, the world and all that dwell therein. Who can stand before His indignation? Who can stand? Who can abide in the fierceness of His anger? His fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by Him. Thus says the Lord. यहाँ पे नहूम पहला अध्याय 5 और 6 वचन, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं, उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। Isaiah chapter 8 verse 13 in NKJV version says like this. यशायाह 8 उसका 13 एनकेजेवी अनुवाद में ऐसा कहता है, The Lord of hosts, Him you shall hallow. Let Him be your fear and let Him be your dread. यशायाह 8 का 13, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। Revelation 1:17 in KJV version says like this. Apostle John is saying, and when I saw Him, that is Jesus, I fell at His feet as dead, and He laid His right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17वां वचन, यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना स्वयं इस वचन को लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवित भी मैं हूँ। Deuteronomy 28:58 says like this in KJV version. व्यवस्था विवरण 28 उसका 58 केजेवी अनुवाद में ऐसा कहता है, If thou will not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, the Lord thy God. यहाँ पे व्यवस्था विवरण 28-58 में ऐसा लिखा है, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने। So today we will learn that when we have godly fear, what exactly will happen, we will see that. तो यार इस बात को हम सीखेंगे कि जब परमेश्वर पिता का भय होता है तब उसे हमारे जीवन में क्या क्या होता है। Number one, first point. पहली बात, There flows from this godly fear a godly reverence for God. और यहाँ से इसी जो परमेश्वर का भय के साथ आपके पास परमेश्वर पिता के प्रति आदर उत्पन्न होता है। Psalm 123
3 verse 2 in KJV version, King David says like this. भजन संहिता 123 उसके दूसरे वचन में राजा दाऊद केजेवी अनुवाद में ऐसा कहते हैं, Behold, as the eyes of the servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress, so our eyes wait upon the Lord our God until that he have mercy upon us. भजन संहिता 123 उसका दूसरा वचन, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर दया ना करे। You know, Joseph said like this in Genesis chapter 42 and verse 18. यूसुफ ने उत्पत्ति 42वें अध्याय 18वें वचन में ऐसा कहा, He says like this do and live, for I fear God. Joseph was a man who feared God. उत्पत्ति 42 के 18 में ऐसा लिखा है, तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। Because Joseph knew that whatever he is doing, God is watching him. Therefore he had reverence and awe for God. इस कारण क्योंकि यूसुफ जानता था कि जो कुछ वो कर रहा है परमेश्वर पिता उसको देख रहे हैं, इसका परमेश्वर पिता के उसके विभव के सामने वो उसके आदर सहित कार्य करता है। You know, when you have godly fear, you not only fear God, but exactly you also give reverence to his word. इसी कारण जब आपके पास परमेश्वर पिता का जब भय होता है, तो जब आप सिर्फ परमेश्वर पिता का भय नहीं मानते, लेकिन उसका जो वचन है उसका आप आदर करते हैं। So Psalm 119 verse 161 in KJV version says like this. भजन संहिता 119 161 वचन केजेवी अनुवाद में ऐसा कहता है, He says, Princes have persecuted me without a cause, but my heart standeth in awe of thy word. भजन संहिता 119 से उसका 161 वचन, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। Psalm 116 verse in KJV version says like this. Uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. भजन संहिता 119 उसका 116 वचन, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। You know, when a man or a woman fears the Lord, he or she will not dishonor God's name and will also not dishonor God's word. इसलिए जब कोई पुरुष या कोई स्त्री जब परमेश्वर पिता का भय मानते हैं तो वो कभी भी परमेश्वर पिता के नाम का या उसके वचन का अनादर नहीं करते हैं। Jeremiah chapter 10 verse 7 in KJV version says like this. यिर्मयाह 10 उसका 7वां वचन केजेवी अनुवाद में ऐसा कहता है, Who would not fear thee, O King of nations? For to thee doth it appertain. For as much as among all the wise men of the nation and in all their kingdoms there is none like unto thee. यिर्मयाह 10 उसका 7 वचन ऐसा कहता है, हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। Let's read one more verse. Revelation chapter 15 verse 4 in KJV version. एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 4 वचन केजेवी अनुवाद में। It says, Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. प्रकाशित वाक्य 15 उसका 4, हे प्रभु कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। So clearly you can see when a person has got godly fear, it produces a godly tenderness towards God's glory in this world. तो यहाँ पे हम स्पष्ट तौर से इस बात को हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर पिता का भय होता है तो वो भय उस व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर पिता की महिमा है उसके प्रति कोमलता को उसके अंदर उत्पन्न करता है। You know, giving glory to God is a debt which we all owe to God. क्योंकि परमेश्वर पिता को महिमा देना हम सब के लिए कर्जे के समान है। हम सब परमेश्वर पिता के कर्जदार हैं कि उसको हमेशा हमको महिमा देना है। Psalm 29 verse 2 in KJV version says like this. भजन संहिता उसका
29 उसका दूसरा वचन ऐसा कहता है, Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of his holiness, in the beauty of holiness. भजन संहिता 29 उसका दूसरा वचन, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। The same verse also is written in 1 Chronicles chapter 16 and verse 29, which says, Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty of holiness. So when we bring our offerings to the Lord, it is to give glory to his name, because he is the one who blesses us. He is the one who gives us strength. And so when we bring our offerings, it is like giving glory to him. इसी कारण यही वचन पहला इतिहास 16वां अध्याय 29वां वचन में भी लिखा है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा की नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इसलिए आप याद रखें, जब परमेश्वर पिता के लिए जब आप उसको भेंट लेके आते हैं, परमेश्वर पिता के लिए भेंटें, तो उसकी महिमा के अनुसार आप उसकी महिमा करने के लिए अपनी भेंटों को हम उसके लिए चढ़ाते हैं। You know, godly people who have fear of God, when they see the wickedness of the men in this world, you know, we see that God's glory is diminished because of wickedness of people. इसी कारण जो लोग, जो प्रभु का जो भय मानने वाले लोग हैं, वो इस संसार में इस बात को भी वो देखने पाते हैं कि इस संसार में कितनी दुष्टता की जाती है मनुष्यों के द्वारा। तो जो परमेश्वर पिता के भय मानने वाले लोग हैं, वो इन बातों को पहचान जाते हैं। You know, they are grieved. Godly people are grieved and distressed because of the wickedness of people. और इसी कारण जब वो लोगों की दुष्टता को देखते हैं, तो उनके अंदर वो शोक होता है, वो दुखित होते हैं कि लोग कैसे परमेश्वर पिता का अनादर कर रहे हैं। Listen to what King David says in Psalm 119 and verse 136 in KJV version. तो आइए इस बात को हम सुनेंगे जो कि भजन संहिता 119-136 में दाऊद कहते हैं। It says, Rivers of waters run down mine eyes. Why does it happen? Because they keep not thy law. People are not keeping God's word, and so it should grieve our hearts. We should be deeply distressed because people are not obeying the word of God. भजन संहिता 119-136 में दाऊद ऐसा कहते हैं, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। जब वो देखते हैं कि लोग परमेश्वर पिता के वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसके द्वारा वो बहुत ज़्यादा दुखित हो जाते हैं। ऐसा दुख और शोक हम सबों को भी होना चाहिए। जब हम लोगों को दुष्टता को देखते हैं, हम भी अंदर से हमको व्याकुल होना चाहिए। You remember in the Old Testament in 1 Samuel chapter 17 how Goliath was threatening the people of God, and there David, who was an ordinary boy, 17 years old boy, he was provoked. Why he was provoked? Why? Because Goliath was defiling the God of Israel. So he was provoked, he was angry, he was greatly, distressed that how can people defile the God of Israel? आप इस बात को भी जानते होंगे कि पहला शामुएल 17वें अध्याय में जब वो गोलियत जो था, जब इस्राएलियों को धमकियां दे रहा था, जब वो परमेश्वर पिता के नाम को अपवित्र कह रहा था, वो उन लोगों को ललकार रहा था, तो उस समय एक जो छोटा बालक जो दाऊद था, क्योंकि 17 साल का रहा होगा उस उम्र में, वहाँ पे आया, और वो जब उसने परमेश्वर पिता के उसके जब अपवित्र कहने की बातों को सुना, तो बहुत ज़्यादा वो उत्तेजित हो गया, वो भड़क गया कि परमेश्वर पिता के नाम को वो कैसे अपवित्र कह रहा है, और इसके कारण वो उससे लड़ने के लिए आ गया। There are many people in the Bible who had godly fear in their lives. इस कारण बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर पिता के वचन में जिनके जीवन में परमेश्वर पिता का भय पाया जाता था। There was a person called Eli. एक व्यक्ति था जिसका नाम था एली। There was Daniel. There was 3 friends of Daniel. They all had fear of God. और दानियल भी था, दानियल के उसके 3 मित्र थे, इन सब के पास परमेश्वर पिता का भय था। If you read 1 Samuel chapter 4 verses 14 to 18, यदि आप पहला शामुएल 4 अध्याय 14 से लेकर 18 तक आप पढ़ेंगे, you will find that Eli, he died with fear and trembling of heart when he heard that the ark of God was taken away.
और यहाँ जब इस वचन को पढ़ेंगे तब इस बात को जानने पाएंगे कि एली बहुत ज़्यादा थरथरा कर कांपने लगा और वो गिर कर उसने प्राण छोड़ दिए। सिर्फ इस बात के लिए उसके अंदर भय आ गया था क्योंकि परमेश्वर पिता का संदूक वहाँ से ले लिया गया था। If you look at Daniel chapter 6, verses 10 to 16, we are not reading because we don't have much time, but you can read it later on. It says like this in Daniel chapter 6, verses 10 to 16. Daniel ran the danger of lion's mouth. Why? Because of the tender love that he had to the word and also worshiping of his God. हम इस बात को दानियल 6वें अध्याय 10 से 16 में भी देख सकते हैं। हम पूरे इन वचनों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय की कमी है। आप बाद में ज़रूर आप पढ़िएगा। यहाँ पे दानियल के पास इस जीवन से हम देखते हैं कि उसका परमेश्वर पिता का इतना ज़्यादा भय था कि वो दौड़कर उस सिंहों की मान में जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर पिता के भय के कारण परमेश्वर पिता के प्रेम को भी वो जानता था। If you look at Daniel's three friends, Shadrach, Meshach and Abednego, in Daniel chapter 3, verses 13, 16 and 20, we will read it in KJV version. और हम यही बात दानियल के तीनों मित्रों में भी हम देख सकते हैं, जिनके नाम थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हम इसके लिए पढ़ेंगे दानियल 3 अध्याय 13, 16 और 20वां वचन। You will find that the three youngsters, they ran the hazard of a burning fiery furnace rather than they would dare to dishonor the way of their God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो तीनों जो लड़के थे वो इस बात के लिए जाने के लिए तैयार हो गए कि वो आग के धधकते भट्टे में चले जाए ताकि उससे उनकी कोई हानि होने के लिए भी वो तैयार हो गए थे, क्योंकि वो परमेश्वर पिता का भय मानते थे। Daniel 3 verse 13 says like this, Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach and Abednego. Then they brought these men before the king because they did not bow before the idol of the king. और यहाँ पे दानियल 3 के 13 में ऐसा लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे राजा पुरुष के सामने हाजिर किए गए। कारण यही था कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी थी। They did not bow before the idol. वो उस मूर्ति के सामने उन्होंने दंडवत नहीं किया था। Verse 16 says, Shadrach, Meshach and Abednego, they answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. 16वें वचन में वो ऐसा कहते हैं कि हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। Verse 20 says, And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. They refused to bow before the huge king's idol, and they had taken this risk because they feared their God. और यहाँ पे 20वां वचन ऐसा कहता है, फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने इस बात के लिए इनकार किया था कि राजा ने जो बड़ी सी जो मूर्ति बनाई थी उसके सामने दंडवत करने से, और वो अपने आप को उस धधकते आग के भट्टे के जोखिम में डालने के लिए वो तैयार हो गए थे। So number one, the fruit of godly fear is reverence for God, reverence for His word, and reverence for the tenderness of His glory. और इसी कारण सबसे पहली बात जो फल हमारे जीवन में आता है परमेश्वर पिता का भय मानने से, वो ये आता है कि हम परमेश्वर पिता का हम आदर करते हैं, हम उसके वचन का आदर करते हैं, और परमेश्वर पिता की जो महिमा है उसको कोमलता को हम जानने पाते हैं। So when you have godly fear, you will have godly reverence of God. इसका जब आपके पास परमेश्वर पिता का भय होगा तब परमेश्वर पिता का आप आदर करेंगे। Let's look at the second point. आइए हम दूसरे बिंदु को देखेंगे। When you have godly fear, there will flow a watchfulness in your life. और जब आपके पास परमेश्वर पिता का भय होगा तब आपके जीवन में सचेत रहना या जागते रहने की भावना होगी। As it is said of Solomon's servants that they watched about his bed because of fear in the night, so it may be said of them that have this godly fear, that it makes them watchful people. और इसी कारण यहाँ पे जो सुलेमान के जो सेवक थे उनके विषय में ये लिखा गया है कि वो रात भर सुलेमान के वो निगरानी करते थे, वो जागते रहते थे ताकि रात में कोई भय ना आने पाए। तो इसी प्रकार से ये बात हम सब के लिए भी है कि जिनके पास परमेश्वर पिता का भय जिनके जीवन में है वो लोग हमेशा जागृत रहते हैं, सचेत रहते हैं। And so when you have godly fear,
You will watch your heart. You will be careful about your heart. You will be watching what is happening in your heart. इसी कारण जब आपके पास परमेश्वर पिता का भय होता है, आप सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करते हैं। आप ये देखते रहते हैं मेरे मन का आप चारों ओर पहरा बैठा के रखते हैं। You will take heed to keep your heart with all diligence. Otherwise, it may lead you to commit wickedness in this life. इसी कारण फिर अपने हृदय की आप पूरे तत्परता के साथ हर एक बातों में आप उसकी सुरक्षा करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये संसार के जो दुष्टता में आप जा सकते हैं। The wisest king gave this advice in Proverbs chapter 4 and verse 23 in KJV version. It says like this, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. और सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान जो राजा था वो नीति वचन 4 अध्याय 23वें वचन में इस बात को कहता है। वो ये कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Let's look at one more verse, Hebrews chapter 12 and verse 15 in KJV version. एक और वचन को देखेंगे जो कि पाया जाता है इब्रानियों 12 उसके 15वें वचन में। Looking diligently, lest any man fall of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. You know, one of the major reasons many people are defiled, especially believers, it is because they have bitterness in their heart. And when they have bitterness in their heart, what do? You know, they defile others also. How do they do that? By sharing their bitterness, their own bitterness with others. And so God is saying, if you have godly fear, you will not do that. You will not keep bitterness in your heart. You will not be doing wrong to other believers especially. And so here the Bible warns us, please watch your heart that you do not do wickedness by having bitterness in your heart and defiling many others. Please don't do that, because if you do that, that is not good according to the word of God. इब्रानियों 12 उसका 15 वचन ऐसा कहता है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी गई है कि हमको परमेश्वर पिता के भय में रहना है ताकि हमारे अंदर कोई कड़वी जड़ ना फूटने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय विश्वासियों के जीवन में ये बात पाई जाती है कि वो भय से इसलिए अलग हो जाते हैं कि जब उनके अंदर कभी भी किसी बात के प्रति जब कड़वाहट आती है किसी के प्रति, तो फिर वो अपने जीवन में कड़वाहट तो रखते ही हैं, साथ ही साथ उस कड़वाहट को वो दूसरों तक भी वो फैलाते जाते हैं। और एक वो कैसा करते हैं, जब वो एक की बात वो दूसरों को बताते हैं और पीछे गपशप और पीछे एक भी दूसरे की बुराई जब करने लगते हैं, तो इसके कारण से ये बात फैल जाती है कड़वाहट। इसलिए परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि सावधान रहो, ऐसी कोई भी बात हमारे जीवन से ना होने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ अब इस बात के लिए सचेत हो जाएं और इस बात का ध्यान रखें कि हम ऐसे काम हम ना करें, क्योंकि परमेश्वर पिता के वचन के ये विरोध है। You know, some people have a very nice excuse. They said, listen, we are sharing this problem about that particular person so that you can pray. Listen, that is not the right reason. If you have to pray for that person because that person is doing something wrong, you have to pray to God and not sharing the weakness or the bitterness you have about somebody with others. Don't do that. Watch your heart regarding this. If you are having bitterness, you are not sharing with others, you are not having godly fear. You have no reverence for God. You have no reverence for His word. You have no reverence for the tenderness of His glory. So one of the things which godly fear does is that it will create watchfulness in your heart. So you and I need to develop godly fear in our lives. इसी का मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और तरीका होता है जिसके द्वारा हम इस कड़वाहट को हम लोगों के साथ बांटते हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं अच्छे से कि हम तो ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये सही कारण नहीं है किसी की कमियों को या आपके अंदर जो कड़वाहट है आप दूसरों तक पहुँचाने का, ये सही कारण नहीं है। यदि आपको प्रार्थना करना ही है तो आप स्वयं परमेश्वर पिता से आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इस बात को दर्शाता है कि आप परमेश्वर पिता का भय आपके जीवन में नहीं है, आप परमेश्वर पिता का भय नहीं मानते
मानते हैं, उसके वचन का आप आदर नहीं करते, आप परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, और जो परमेश्वर पिता की जो महिमा की जो कोमलता है वो आपके जीवन में नहीं पाई जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने अपने हृदय को हम जांचें, हम पहरा बैठाएं कि कोई भी कड़वाहट या ऐसी कोई भी बात हमारे हृदय में ना आने पाए। So, you will be watching your heart. You will also be watching that you don't enter into some sort of temptation, because once temptation enters your heart, your life is destroyed. इसी कारण जब हम अपने हृदय की जब हम देखभाल कर रहे हैं, इस बात के साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में कोई भी अभिलाषा की बातें, परीक्षा की बातें हमारे जीवन में ना आने पाए, क्योंकि जब हम अभिलाषा में गिर जाते हैं तब फिर हम उस पाप में या फिर परमेश्वर पिता के भय से दूर हो जाते हैं। 1 Peter chapter 5 verse 8 in KJV version says like this. पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन केजीवी अनुवाद में ऐसा कहता है, It says to all of us, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So it is Satan, who is always looking for people who are hurt, who have got bitterness, so that through them he will be able to defile many other people and create bitterness in many hearts. So you and I, if we have godly fear, we will be watching our heart, because from the heart there are many things which arises. पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन ऐसा कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ प्रियो, ये शैतान तो हमेशा खोज में रहता है, वो हर एक उस हृदय को ढूंढता रहता है जिसने चोट खाई है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी यदि कड़वाहट है, वहाँ पे आए वो वार करे और उस व्यक्ति को दूषित करे, और साथ ही साथ उसके द्वारा दूसरों को भी वो अपवित्र करने की ताक में रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने हृदय की हम अपने हृदय पर पहरा बैठाएं, उस पर देखते रहें, सचेत रहें, और ताकि ऐसा कोई भी कड़वी बात हमारे जीवन से ना होने पाए। So watch your heart. अपने हृदय की आप रक्षा करें। The second thing we have to watch for is to watch our mouths. और दूसरी बात जिसको हमको अपना ध्यान रखना है वो है हमारे मुंह को। And we have to keep our mouth also as with bit and bridle, that they should not offend with their tongue. We should not offend with our tongue, knowing that the tongue is apt, being an evil member, soon to catch the fire of hell, to the defiling of the whole body. So when we speak bad about others with our mouth, we are actually defiling our whole body. So we need to watch over our mouth. In fact, one of the psalmists says like this, let us put guard over our mouth. इसी कारण यहाँ पे दूसरी बात जो है, हमको अपने मुख पे हमको पहरा बैठाना है, क्योंकि उसको वचन कहता है कि हमको उसको अपने लगाम में रखना है, ताकि इसके द्वारा किसी को भी हम चोट ना पहुँचाएं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे हर एक अंगों में जीभ भी एक ऐसा अंग है जो सारे अंगों में एक आग लगा सकता है। जैसे वन में जैसे आग लगती है, वैसे ही वो आग, जो नरक की आग हमारे जीवनों से वो लगा सकता है। इसलिए अपने मुख का हमको ध्यान रखना है कि हमारे मुख के द्वारा, क्योंकि जब मुख से यदि कोई बात बोलते हैं तो हमारे पूरे शरीर पे वो आग लगा सकता है। Let's read James chapter 3 verses 2 to 7 in KJV version. तो एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब 3 अध्याय उसके 2 और 7 वचन को। Verse 2 says, in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. याकूब 3 उसका 2 से लेकर 7 वचन तक। तो दूसरा वचन ऐसा कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। Verse 3, behold, we put bits in the horse's mouth, that they may obey us, and we turn about their whole body. तीसरा वचन कहता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। Verse 4, behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet they are turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. चौथा वचन कहता है, देखो जहाज भी यदि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। Verse 5, even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. 5 वचन कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है।
देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। Verse 6, please underline. And the verse is coming on the screen. Please read it aloud. It says like this, and the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. छठवें वचन को आप कृपया ध्यान से आप इसे पढ़ें, जो आपके स्क्रीन में आ रहा है उसे ऊंची आवाज में पढ़ें, आप इसे रेखांकित कर लें। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भवचक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। Verse 7, of every kind of beasts and of birds and of serpents and of things in the sea is tamed, but hath been tamed of mankind. सातवां वचन कहता है, क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। So we need to watch over our mouth. इसलिए अपने मुख की हमको चौकसी करनी है। If we have godly fear, we will also have a watch over our ways, so that we will look to our going out and coming in. We have to see that our paths are straight and not wayward. You know, only the snake walks wayward. And let not our path or our ways be wayward like serpent. We have to take a straight path, the path and the way which Jesus Christ has shown to us. So you and I have to be careful of the way we are going. Psalm 39 verse 1 in KJV version says, I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. इसी कारण किसी व्यक्ति के अंदर यदि परमेश्वर पिता का भय होता है, तो वो व्यक्ति अपने मार्गों की भी वो चौकसी करता है, उस पर ध्यान लगाता है। इसलिए हमको अपना बाहर जाने में, भीतर आने में हमको ध्यान रखना है। हमको हमारे जो कदम हैं सीधे मार्ग पर ही चलाना है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि जो टेढ़ी मेढ़ी चाल जो होती है वो सर्प की चाल होती है, शैतान की चाल होती है। इसलिए हमको अपने मार्ग को सीधे मार्ग में चलाना है, जो यीशु मसीह ने हमको सिखा के गए हैं उसी मार्ग में हमको चलना है। इसी कारण भजनकार भजन संहिता 39 उसके पहले वचन में ऐसा कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। Hebrews chapter 12 verse 13 says, and make straight paths for your feet. Make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. इब्रानियों 12 उसका 13 वचन कहता है, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। Proverbs 14:12, very famous verse. It says, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So you and I need to keep watch over the ways we are going. नीति वचन 14 उसका 12 वचन बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमको अपने मार्ग की चौकसी करनी है। So we have to be watchful, so that as children of God, we will not defile ourselves, we will not defile the ways of God. We will also not defile others by having bitterness in our hearts and sharing that bitterness. And we will not cause the people to speak reproachfully of Jesus Christ. Listen, if we don't walk right, when people will see our lives, they will, call names to Jesus. They will be talking ill of Jesus. They will say, hey, see the Christians. See these believers. See the way they walk. See the way they are doing things in this life. See the way they are talking ill of others. See the way they are fighting. So all these things will bring reproach to our Lord Jesus Christ. Listen,
Lord Jesus Christ did not do anything wrong that we should be reasons, as a stumbling block for others and as well as for the name of glory of Jesus Christ. So we have to be watchful of our hearts. We have to be watchful of the ways of temptation. We have to be watchful of our mouths, and we have to keep a watch on the ways in which we are traveling. तो इसी कारण मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर पिता की संतान होने के नाते अपने हर एक मार्गों की हमको अपनी चौकसी करना है, अपने हृदय की चौकसी करना है, अपने मुख के शब्दों की चौकसी करना। हम किस मार्गों में जाते हैं हमको उसकी चौकसी करना है। किसी भी रीति से हमको किसी भी तरीके से अपने जीवनों को अपवित्र नहीं करना है, और ताकि जिसके द्वारा जैसे कड़वाहट हम दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं, हमको वो कड़वाहट दूसरों तक भी नहीं पहुंचाना। पवित्रों को हमको भी उनको अपवित्र नहीं करना है, और इसी कारण और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होने पाए। क्योंकि जब हम उन चालों को नहीं चलते, सही चाल नहीं चलते हैं, तो फिर लोग हमको देख के कहते हैं कि ये तो विश्वासी जन ऐसा चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने लोग ऐसा करते हैं, तो इसके कारण फिर यीशु मसीह के नाम की निंदा हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे और यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसकी निंदा हो सके। लेकिन हमारे जीवनों के द्वारा हमको इसी बात को अपने जीवन में चौकसी करना है कि हमारे हृदय कैसे हैं, हम किसी अभिलाषाओं में ना पड़ें, अपने मुख की हम चौकसी करें, अपने मार्गों की चौकसी करें, ताकि उसके नाम की महिमा होने पाए। Let's quickly also look at the third point. If we have fear of God, it will cause people to speak reverentially of faith and also of way of holiness. और तीसरी बात ये होती है, ये बिंदु इसमें है कि जब हम परमेश्वर पिता का भय मानते हैं, तो वो जो भय होता है वो दूसरे लोगों को परमेश्वर पिता के विश्वास और उसके पवित्रता के विषय में आदरपूर्वक बातें कहने को उकसाता है। Malachi chapter 3 verse 16 in KJV version says like this: Then they that fear the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. मलाकी 3 उसका 16 वचन ऐसा कहता है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। You know, the natural effect of godly fear is to speak of God. और एक स्वाभाविक बात जब होती है आपके जीवन में परमेश्वर का भय आता है, परमेश्वर पिता के बारे में बातचीत करने लगते हैं। When we have godly fear, we will, speak about him, and we will speak about him reverentially. और इस कारण जब हमारे अंदर परमेश्वर पिता का भय होता है, परमेश्वर पिता के बारे में बातचीत करते हैं और बड़े आदर पूर्वक उसके बारे में बात करते हैं। Psalm 89 verse 7 in KJV version says like this: God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him. वचन संहिता 89 उसका 7 वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। So when we have fear of God, our hearts will be prepared to God, and our hearts will turn to God. इसका जब हमारे पास परमेश्वर पिता का भय होगा, तो हमारा हृदय जो है परमेश्वर पिता की ओर ही लगा रहेगा, परमेश्वर पिता के नजदीक रहेगा। So let's see what David prayed, for the people when he prayed for them in 1 Chronicles chapter 29 and verse 18. इस कारण उस प्रार्थना को हम देखेंगे जो दाऊद ने लोगों के लिए किया, जो कि पाई जाती है पहला इतिहास 29वां अध्याय 18वें वचन में। It says, "O Lord, God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their hearts unto thee." यहाँ पे ऐसा लिखा है पहला इतिहास 29 के 18 में, हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we thank you for this topic about godly fear. परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस विषय के लिए, आपके भय के विषय में। Godly fear is to have reverence for God. परमेश्वर का भय मतलब होता है परमेश्वर का आदर करना। When we have godly fear, we know that out of our heart will flow watchfulness. हाँ प्रभु जी, जब हमारे पास आपका भय होता है प्रभु जी, तो हमारे हृदय से प्रभु जी जो चौकसी करने की आत्मा वो बहती है प्रभु। We will be watchful
about our hearts. अपने हृदय की हम रक्षा करने पाते We'll be हैं। watchful of temptation. हम हर एक परीक्षाओं से बचने की रक्षा करते We will हैं। be watchful about our mouths. अपने मुंह की हम चौकसी करते हैं We will be watchful about the ways we are taking. और जिस मार्ग में हम जाते हैं हम उसकी चौकसी करते हैं। When we have godly fear, we will speak about God reverentially. और जब हमारे पास आपका भय होता है प्रभु जी, हम आपका नाम आदरपूर्वक लेते हैं, आपके बारे में बातचीत करते हैं। Lord, I pray for myself and all my brothers and sisters that you will help us develop godly fear in our lives, O Lord. हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने लिए और अपने हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, होने दे आपका परमेश्वर पिता आपका भय हमारे जीवन में आने That we पाए। will come to you in reverence and honor. We will be concerned about the tenderness of your glory. We will be concerned about your name. We will revere your name, O Lord. We will also honor your word, O Lord. When we read your word, we will honor your word, O Lord. Help us in all these aspects, O Lord. हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका भय हमारे जीवन में आने पाए प्रभु जी। और जब आपका भय हमारे जीवन में आता है प्रभु जी, तो आपके विभव के कारण प्रभु जी, हम प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप अपने जीवनों के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र नाम का हम भय मानते हैं प्रभु जी, आपके वचनों का हम भय मानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दे कि ये भय हमें से हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु। Lord, I also pray that we will keep no bitterness in our hearts, O Lord. And if there is any bitterness whatsoever, we will repent immediately, O Lord. And also we will not defile others by sharing our bitterness. हाँ प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम में किसी के अंदर भी कोई भी कड़वाहट ना पाई जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हर एक कड़वाहट को आप दूर करें प्रभु जी। और प्रभु जी, होने दे कि प्रभु जी इस कड़वाहट को हम किसी और दूसरों के साथ भी ना बांटे, दूसरों को भी हम अपवित्र अशुद्ध ना करें प्रभु जी, उस कड़वाहट को दूसरों तक पहुंचाने के द्वारा You प्रभु। set a guard over our mouths, O Lord. हाँ प्रभु जी, हमारे मुख पे आप पहरा बैठाएं We प्रभु। give you all glory. In Yeshua's name we pray. आपको सारी महिमा देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. आमीन। God bless you. We will continue this topic next week as well. प्रभु आप सबों को आशीष दे, इस विषय में हम आगे चलेंगे अगले सप्ताह। This is the time to bring our tithes and offerings to the Lord. अभी समय होगा कि अपने दानों दशवांशों को प्रभु के लिए लेके आएं। This request is only to our church members. और ये निवेदन सिर्फ कलीसिया के लोगों के लिए है। We are so thankful to all those who are continuously and regularly giving their offerings and tithes. हम सभी के आभारी हैं, धन्यवादी हैं जो लगातार अपने दानों दशवांशों को लगातार देते जा रहे हैं। Because of your support, we are continuing our services. और क्योंकि आप ही के सहयोग से ही हो सकता है, होने पा रहा है कि हम सभा को हम चलाने पा रहे We हैं। really appreciate. आप सभी का आप सराहना करते I will हैं। read one verse, 1 Chronicles chapter 29 and verse 14, and I will read from KJV version. और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा जो पाया जाता है पहला इतिहास 29वां अध्याय 14वें वचन में, जो केजेवी अनुवाद में है। Here King David is praising God for the funds they were able to raise for the temple. और यहाँ पे राजा दाऊद परमेश्वर पिता की स्तुति कर रहे हैं कि वो जो उस समय उन्होंने जो धन इकट्ठा किया था उस मंदिर को बनाने के लिए। He says like this, "But who am I and what is my people that we would be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee." पहला इतिहास 29 का 14 वचन, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we thank you for every hand, O Lord, which is contributing regularly. We pray that you will give your blessings, O Lord. You will open the windows of heavens, O Lord, and you will bless them. And those who are not able to for some reason, O Lord, I pray that you will bless their hearts, O Lord, so that they will also be able to sow the seed which is required for the extension of thy kingdom, O Lord. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक जनों के लिए जो आपके राज्य के लिए निरंतर देते जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके लिए आशीष की हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपसे घोषणा करते हैं प्रभु जी कि आप अपने प्रभु जी स्वर्ग के झरोखे खोल कर प्रभु जी उनके जीवन में उन अपरंपार आशीषों की आप वर्षा करें प्रभु जी। हर एक आप में आशीषित पाए जाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक वो लोग जो किसी कारणवश प्रभु जी आपके राज्य के लिए नहीं दे पा रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उन्हें भी प्रभु जी उस बीज को बोने के लिए प्रभु जी
आप बीज प्रदान करें प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी वो आपके राज्य के लिए बोने पाए और उसका प्रतिफल पाने पाए। Lord, I pray that you will also bless those who have lost their jobs and businesses, O Lord, and those who are suffering because of debt, O Lord. I pray that you will bless them, O Lord, and provide them new opportunities, O Lord. हाँ प्रभु जी, उन प्रियो के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग अपने नौकरी से प्रभु जी, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके व्यवसाय में नुकसान है प्रभु जी, जो कर्जों में हैं प्रभु जी, आपसे हम प्रार्थना करते हैं अपने अवसर प्रदान करेंगे और उनको छुटकारा देंगे प्रभु। Provide supernatural intervention in their lives, O Lord. आप अलौकिक रीति से हस्तक्षेप करें प्रभु। We also bless the nation of Israel and the Jewish people, O Lord, and Messianic people, O Lord. We pray for salvation of all the Jewish people in the name of Yeshua the Messiah. We also pray that you will protect that country, O Lord. हाँ प्रभु जी, इजराइल देश के लिए, यहूदियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक यहूदियों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो मैसियानिक यहूदी वहाँ पे पाए जाते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस पूरे देश की प्रभु जी सुरक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं We प्रभु। also pray that you will protect our country, O Lord, especially from China and also from Pakistan, O Lord. हाँ प्रभु जी, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करेंगे, खास तौर पे चीन से और पाकिस्तान से प्रभु। You will give wisdom to our national leaders, O Lord, and you will also strengthen our armed forces, O Lord, and you will provide angelic intervention, O Lord, in the border area so that our borders are protected supernaturally, O Lord. हाँ प्रभु जी, हमारे देश को आगुओं को प्रभु जी आप अलौकिक बुद्धि प्रदान करेंगे प्रभु जी, आप हमारे देश की सेनाओं को प्रभु जी और भी मजबूत करेंगे प्रभु जी, आपने स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु जी हमारे देश को आप सुरक्षा प्रदान करेंगे, अलौकिक रीति से हमारे देश की सुरक्षा होने पाएगी We प्रभु। pray that peace will prevail in the border areas, O Lord. हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो सीमाओं के क्षेत्रों में शांति बहाल रहने पाए We प्रभु। also remember especially some people who are going through difficult times, O Lord. हाँ प्रभु जी, आप विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु। We pray for Dr. Bhaven, O Lord. हाँ प्रभु जी, डॉक्टर भावेन के लिए हम प्रार्थना करते We हैं pray प्रभु। for Brother Satpal, O Lord Jesus. भाई सतपाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। We pray for Sister Maheshwari, O Lord. Supernaturally you heal them, O Lord. हाँ बहन महेश्वरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब अलौकिक रीति से उनको छू ले और चंगा कर दें प्रभु। We pray for Sister Madhuri's mother and also Malti and Amithoro's father, O Lord. Supernaturally and divinely you touch them and heal and deliver them, O Lord. हाँ प्रभु जी, बहन माधुरी की माता जी के लिए प्रभु जी, भाई अमित होरो के पिताजी के लिए प्रभु जी, हम मालती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अलौकिक रीति से उन्हें छुएं और चंगाई प्रदान करें प्रभु। We also pray for Brother Pavan Mani. We pray for Naveen's parents, O Lord. We pray for Brother Srinivas, O Lord. We pray for Raj Nandani, O Lord. We pray that you will stretch your hand and heal and deliver them, O Lord. हाँ प्रभु जी, भाई पवन मणि के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भाई नवीन के माता पिता के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजनंदिनी के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, जितने प्रियो के नाम लेके प्रभु जी जो बीमार है उनकी चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। We also pray those who are having blood pressure and sugar, O Lord, divinely touch and heal them, O Lord Jesus. हाँ प्रभु जी, जो रक्तचाप से प्रभु जी और जो प्रभु जी मधुमेह से प्रभु जी जो पीड़ित है प्रभु जी, ब्लड प्रेशर से प्रभु जी और डायबिटीज से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें प्रभु। Those who are suffering coronavirus, we pray that you will heal them. We rebuke coronavirus over our nation in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु, जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। हम प्रभु जी कोरोना वायरस को डांट हमारे देश से और निकल जाए प्रभु। We also pray for medical staff, our church medical staff, O Lord, and our nation's medical staff, O Lord. We pray that you strengthen them, protect them, encourage them, and comfort them, O Lord, as they've been working very hard, O Lord. I pray that your divine favor rest over each one of them, O Lord. हाँ प्रभु, जो लोग चिकित्सा विभाग में काम करते हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खास तौर पर जो हमारे कलीसिया के लोग भी जो चिकित्सा विभाग में काम करते हैं प्रभु जी, उनके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप भी उन्हें सामर्थ प्रदान करें प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु जी, आप भी शक्ति प्रदान करें प्रभु जी, जो इतने दिनों से लगातार प्रभु जी जो सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी उन्हें सामर्थ प्रदान होने पर अपनी शांति प्रभु जी, आपकी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें प्रभु। We pray for all those who have lost their lives. We pray for your comfort and peace, O Lord, and your presence to be with them, O Lord. हाँ प्रभु, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया प्रभु जी, जिन परिवारों में मृत्यु हो गई प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप ही की शांति, आप ही की तसल्ली, आप ही की सांत्वना प्रभु जी, आप ही की उपस्थिति उन परिवारों में होने पाए In प्रभु। Yeshua's name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, Amen. आमीन। Wherever you are, you can stand and we will say the Lord's Prayer, and we will say the Lord's Prayer from Matthew chapter 6 verses 9 to 13 in NKJV version. आप जहाँ कहीं भी हैं कृपया अपने स्थान में खड़े हो जाएं। अभी हम प्रभु की प्रार्थना हम करने पर हैं, जो कि मत्ती 6वें अध्याय 9 से 13 वचन में पाई जाती है। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
and forgive us our debts as we forgive our debtors, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही हैं। आमीन। Let's receive the benediction. आइए हम आशीष को ग्रहण करेंगे। और अब खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और संगति हम तमाम विश्वासियों के साथ, एक एक भाई और बहन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। Amen. And now the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, fellowship and communion of Holy Spirit may be with each one of us now and forevermore. Amen. Let's pray for the bereaved family of Priya Gowda and Sister Vinita Lal and also Sister Jacob. Lord Jesus, we bring these three families, O Lord, to your throne of grace, O Lord. First of all, we pray for Priya Gowda's family, O Lord. We pray for her father. We pray for her brother and friends and relatives, kith and kin, O Lord. We remember each one of them, O Lord, that Priya went to be with the Lord in a manner which is very shocking, O Lord, for us who are left behind on this earth, O Lord. We pray that you will comfort father, you will comfort brother, O Lord, and other family members, O Lord. It is so shocking for the entire family and the entire household, O Lord. We know that they are in great grief, O Lord. Right now, I pray that let your comfort, let your peace cover them and protect them, O Lord. We also remember Sister Vinita Lal. She left behind husband and daughter, O Lord, and other relatives, Pastor Rakesh Lal and many others, O Lord. We pray for all of them that you will comfort them and give your peace, O Lord. Give them your shalom, O Lord, which is beyond human understanding, O Lord. We also remember Sister Jacob. She came to our church for so many years. She had such a great zeal. She was passionate for the kingdom of God. She was ever ready to share the word of God with anyone and everyone, O Lord. We thank you for her life, O Lord. Even as your word says, the memory of a righteous is a blessing, O Lord. We remember all the good things she has done, O Lord, and other family members as well, O Lord. We bless them in Yeshua's name, and we pray that you will comfort their family members, you will comfort their relatives and their friends, O Lord Jesus. This morning, we also especially remember those who commit suicide in our nation, O Lord. The suicidal spirit, O Lord, is covering our entire nation. Many farmers commit suicide, many youngsters, even middle-aged people, they commit suicide. We bind the spirit, we rebuke the spirit, and we cast the spirit out of our nation, O Lord. Your word says that the devil came to steal, kill, and destroy, but you came down to this earth to give us abundant life and everlasting life, O Lord. So we speak your abundant life over our nation, over the people of our nation, O Lord, over all the church members, that you will guard and protect each one of them, O Lord Jesus. When this suicidal spirit they get, O Lord, I rebuke it, Lord, that you will remind them that you are the Savior, you are the deliverer, O Lord. You came to give us good life, O Lord. I pray that everyone will remember this, O Lord, and you will help people overcome all the tensions and anxieties in their families, O Lord. You will provide peace in every family. In Yeshua's name we pray. Amen. Amen. God bless you. Please be seated, and those who are celebrating their birthdays and wedding anniversary today and from last Monday, may I request you to please stand. We would like to pray for you. कृपया अपने स्थानों में आप बैठ जाएं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिनका जन्मदिन आज है या शादी की सालगिरह आज है, या फिर जिनका पिछले सोमवार से लेके सप्ताह भर था, कृपया अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। Let's stretch our hands towards the screen. The names are coming on the screen, and let's pray for them. आइए अपने हाथों को स्क्रीन की ओर बढ़ाएंगे, उनके नाम स्क्रीन पे आ रहे हैं, अब उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we pray for Prem Masi, we pray for Ajay Roy, we pray for Gagan Bhatia, we pray for Nikhat Bahel, O Lord, we pray for Saurav, O Lord, we pray for Dhanashri, we pray for Shibani James, O Lord, we pray for all these precious people, O Lord, who celebrated their birthdays, and some of them are celebrating today. Lord, I pray for each one of them. I cover them with the blood of Jesus, and I pray for your divine favor, supernatural favor over each one of them, O Lord.
हाँ प्रभु जी, हर एक इन प्रियों के लिए प्रभु जी जिनके नाम लिए गए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनमें से कुछ प्रियों का जन्मदिन तो आज ही के दिन है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक के लिए प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दे आपका अलौकिक अनुग्रह भरा हाथ इन प्रियों के जीवन में हमेशा बना रहे प्रभु जी। आपकी करुणा, आपकी आशीष इनके जीवन में बोलते हैं प्रभु। Lord, I pray that you will be very kind and generous to them, O Lord. आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके प्रति आप दयालु और कृपालु बने रहेंगे You will make प्रभु। your face shine over them, O Lord. अपने मुख का प्रकाश इन पे चमकाएंगे The inner प्रभु। man be strengthened by the power of Holy Spirit. इनका बीती मनुष्यत्व आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बलवंत होता जाएगा They will प्रभु। be obedient to you by faith, O Lord. हाँ प्रभु जी, ये आपके प्रति आज्ञाकारी बने रहेंगे विश्वास के साथ। Your love, O Lord, and your fullness will dwell in their hearts, O Lord. हाँ प्रभु जी, आपका प्रेम और आपकी परिपूर्णता इनके जीवनों में वास करेगी They will प्रभु। walk worthy according to your calling, O Lord. हाँ प्रभु जी, जिस बुलाहट के लिए इनको बुलाया गया प्रभु जी, उसके योग्य ये चाल चलेंगे Their प्रभु। lives will be pleasing to you, Lord हाँ, Jesus. इनका जीवन आपको प्रसन्न करने वाला होगा They will प्रभु। bear much fruit, O Lord. हाँ प्रभु जी, बहुत ज्यादा फलवंत होंगे Even प्रभु। as the soul prospers, they will prosper and be in good health, O Lord. जिस प्रकार से इनकी आत्मा उन्नति कर रही है प्रभु जी, हर एक बातों में उन्नति करेंगे और भले चंगे रहेंगे They will प्रभु। walk in the fear of God. आपके भय में चलते रहेंगे प्रभु। We cover them with the blood of Jesus. We pray for the good health, O Lord. अब इनको लहू के यीशु के लहू में आप ढांपते हैं प्रभु जी, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं In प्रभु। Yeshua's name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, Amen. आमीन। So God bless you. Once again, wish you all a very happy birthday. प्रभु आप सबको आशीष दे, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। And so this is the time of couple of announcements. अभी कुछ समय होगा कि हम कुछ घोषणाओं को सुने। Please remember we have Bible study on Wednesday, Thursday and Friday at 7:45 p.m. till 8:30 p.m. on Zoom and also on YouTube. कृपया इस बात को याद रखें कि अब हर एक बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार जूम पे हम शाम 7:30 बजे से 7:45 से 8:30 तक हम बाइबल अध्ययन करते हैं। Wednesday we study the book of Daniel. हम बुधवार के दिन दानियल की किताब का अध्ययन करते हैं, Thursday we study the book of Revelation. और गुरुवार के दिन हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करते हैं, Friday we study the book of Romans. और शुक्रवार के दिन हम रोम की किताब का अध्ययन करते Do हैं। join us. कृपया आप इसमें शामिल हों। You can also subscribe to our YouTube channel Fobal VK. आप हमारे YouTube चैनल फोबल वीके पे भी आप जुड़ सकते हैं। You can also send your prayer request at the number given on the screen. आप अपने प्रार्थना निवेदन जो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप भेज सकते हैं, Also through Fobal, www.fobal.online. और www.fobal.online पे प्रभु आप अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। We also have morning prayers from 4:55 a.m. till 6 p.m. So you can 6 a.m. Sorry, you can join in this morning prayer and you can also send your prayer request. हम प्रतिदिन सुबह 4:55 से लेकर सुबह 6 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं। आप इसमें शामिल हो सकते हैं और अपने प्रार्थना निवेदन भी इसके लिए भेज सकते हैं। God bless you till we meet again. प्रभु आप सबको आशीष दे जब तक हम दोबारा फिर से ना मिलें। We love you in Yeshua. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रेम करते हैं। Shalom to everyone. आप सभी को शालोम।